Hi everyone, welcome to Economics Weekly Series, and in today's session I'll be discussing those news articles which came between 27th November to 5th December. Okay, and I would highly recommend to watch my earlier two sessions because most of the relevant news articles related to economics have been discussed in those sessions, and they are highly relevant from a prelims perspective. Okay, and in this particular week there was not much information and much news about the extra news related to economics. That's why I tried to cover COP29 summit and in particular carbon trading mechanism and then G20 summit, because I was looking for something opportunity like this जहाँ पे मेरे पास time हो to discuss these two things in detail. Okay, so our first topic for today's session is biofortified crops, then National Mission on Natural Farming, stress on microfinance sector, and then EMA portal, and then COP19 summit and carbon trading mechanism in particular, then G20 summit. Okay, so our first news is Seed Congress resolved to promote biofortified crops. Here you need to know what is Seed Congress first, and second, what is biofortified crops. Seed Congress is a kind of meeting of those stakeholders related to who are assigned to maintain seed quality and seed related activities. For example, if you see this news article, there was 13th edition of 3-day National Seed Congress that happened. Okay, so related to seed kind of thing, I tried finding these kind of information which you should be knowing about seed. First is we have National Seed Corporation, okay, which established in 1963. It produces foundation and certified seeds for 600 varieties and across 60 crops. Of course, you don't need to remember these numbers, but of course you need to know what is National Seed Corporation. It is a kind of organization which looks after maintaining seed quality. Okay, and it established in 1963. We have Seed Act 1966 as well, which tries to regulate seed quality and establish state seed certification agencies. Okay, then we have National Seed Policy of 2002 as well. Then we have Seed Village Program, and then National Seed Reserve as well. So we have some sort of developed mechanism through which we tries to ensure maintaining seed quality as well as maintaining a sustainable supply of seeds in the market as well. Okay, so coming back to our news, Seed Congress, that meeting that known as National Seed Congress actually. So in that meeting they said that we will be promoting biofortified crops. Now what is biofortified crops? As name suggests, fortified, biofortified crops. I mean fortified means fortified means addition. Okay, and bio, of course, related to nature. Something related to nature, we are trying to add something into nature or into products, into agri product, something related to that. Okay, so even by name itself suggests biofortified crops are the food crop that has been genetically modified or grown using agronomic practices to increase its nutritional value or to increase its productivity. Okay, so these are the staple crops. To be richer in micronutrients like iron, zinc or vitamin A, they aim to improve nutrition especially for the people, limit access to diverse seeds. So basically यही होता है कि जो सीड है वहाँ पे हो सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी एक सीड से अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना हो, तो अगर हम उसमें कुछ एलिमेंट डाल देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे इसको, तो हो सकता है कि एक सीड से हमारा 150 यूनिट प्रोड्यूस हो. ओके, सेकेंड हो सकता है कि उससे न्यूट्रिशन पहले आयरन जिंक की कमी हो उसमें, एंड वी ट्राई टू इंश्योर कि उसमें वो भी ऐड हो जाए, तो अब जो प्रोड्यूस होगा उसमें आयरन भी एनरिच्ड होगा, उसमें जिंक भी होगा. सो दैट मे हैपन यूजिंग दोज मॉडिफिकेशन टेक्निक. ओके, सो दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्वीट पोटैटो और समथिंग लाइक दैट. तो विटामिन ए, सपोज अगर स्वीट पोटैटो में कमी है, वी ट्राई टू इंश्योर कि विटामिन ए समथिंग रिलेटेड कोई एलिमेंट हम इसमें डाल दें, तो वो अब जो पोटैटो प्रोड्यूस होके आएगा उसमें विटामिन ए एनरिच्ड होगा वो. ओके, सो दैट हैपन्स. बेनिफिट्स क्या होता है इसका बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स का? तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन
सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करता है. ओके, इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फर्स्ट बेनिफिट, सेकेंड फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है. HYV सीड्स जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे काम आया था, राइट. सो दैट हैपेंड कि HYV सीड से प्रोडक्टिविटी अचानक से मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गई थी. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल में यू कैन यूज़ दिस वन, गोल्डन राइस, विटामिन A एनरिच्ड. ओके, एंड वी कैन यूज़ ऑल्सो PDS में अभी हुआ है ना कि राइस, फोर्टिफाइड राइस अब उसमें जा रहा है. तो फूड फोर्टिफिकेशन की टेक्निक आई है, उसमें फोर्टिफाइड राइस जा रहा है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, आयरन, फॉलिक एसिड एंड देन विटामिन B12 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. दीज आर द 3 एलिमेंट्स जो कि इंश्योर करने हैं कि उस राइस में होना चाहिए और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जा रहा है. तो दैट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो ये तो एग्जाम्पल तो रट लो बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कहीं पे भी डाल सकते हो. फर्स्ट 2 पॉइंट. ओके, थर्ड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ऑफ कोर्स बिकॉज अभी फ्लड, ड्रॉट्स, पेस्ट अटैक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एग्रीकल्चर इज फेसिंग. So agar we have those kind of seeds which can be salt tolerant, which can be drought tolerant, then we can ensure some sort of food security and as well as we can ensure sustainable agriculture as well, because we have a water scarcity, we have a soil infertility. So because of all these things already production is going down. सो वी नीड टू इंश्योर कि जो सीड क्वालिटी हो वो ड्रॉट टॉलरेंट हो, जिससे कि स्कार्सिटी अगर होती भी है तो भी वो काम हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी ना घटे. ओके, सो दैट हैपन्स. देन इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल, बिकॉज इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन you will consume more and of course you will export some of the item, so you can earn more as well. Okay, so first example is golden rice, second is iron enriched pearl millet, third is zinc enriched wheat, vitamin A enriched sweet potatoes. So of course these are the example, or even GM crops like GM BT cotton, then BT rubber is in process. So these are the things going on currently in India. Okay, challenges एक्सेप्टेंस का है, बिकॉज अभी भी फार्मर्स को अगर हम बोले तो वो एक्सेप्टेंस रेशियो कम है, इवन आफ्टर गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग देम एट देयर लेवल, बट थोड़ा सा भी अवेयरनेस की कमी है. स्केलेबिलिटी का इशू है, बिकॉज नॉर्मली जो सीड्स होते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस अगर वो सीड है ट्रेडिशनल सीड कन्वेंशनल वाले, तो उसे हम दोबारा से फिर से यूज़ कर सकते हैं. पर ये वाले जो सीड होता है इसे बार बार हमें कंपनी से परचेज़ करना पड़ेगा. तो उस केस में जो डिपेंडेंसी ऑन सीड कंपनीज वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. और जब ये चीज़ हाई होगी तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ सकते हैं. जब प्राइस बढ़ेंगे तो फार्मर को इशू हो सकता है, फार्मर को लॉस हो सकता है उस केस में. सो स्केलेबिलिटी का इशू है एंड डिपेंडेंसी ऑन सीड कंपनीज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर. देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीज़ें बैन हैं तो या फिर चल नहीं रही हैं या फिर स्केलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं, तो रेगुलेटरी पे भी क्लैरिटी नहीं है उतनी ज़्यादा. और सस्टेनेबिलिटी का भी इशू है कि सपोज़ आज तो हमें ये क्रॉप्स फ़ायदा कर रहे हैं, बट व्हाट हैपन्स अगर ये कुछ टाइम बाद इन्वेसिव काइंड ऑफ क्रॉप्स बन जाएं. व्हाट इफ़ इनके जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट निकल के आए, क्योंकि अभी ये काफ़ी नए हैं. जब हम इसे 50 to 100 ईयर्स के ड्यूरेशन पे देखेंगे तब हमें इसका एक्चुअल रिजल्ट पता लगेगा कि ये सही भी है सही मायनों में या नहीं. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी इशू है. ओके, सस्टेनेबिलिटी का भी इशू है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होने वाला है या नहीं. बायोडाइवर्सिटी थ्रेट एज वेल. ओके, then biofortified crops have a potential to address micronutrient deficiency, but challenges को दरकिनार नहीं किया जा सकता. We have to focus and do something, like come out with the solution to overcome those challenges first. Okay, then our next article is National Mission on Natural Farming. Of course ये जो topic है you must have heard lot of time, you must have read lot of time in your static portion as well. Then why this is suddenly in news, क्यों है अभी? तो basically ये क्यों है, because सेंटर ने इसको allocate किया है ज़्यादा फंड, almost 24 I think this one 181 crore. So they have allocated a large amount of fund to it, and this one is now centrally sponsored scheme. Okay, sponsored scheme, and
इफ़ यू वांट टू नो कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो सिर्फ इसलिए बिकॉज अब तक ये बाकी पॉलिसीज़ के अंदर था दैट गवर्नमेंट यूज टू से कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाएंगे एंड वी विल डू दिस एंड दिस, बट एक्चुअली स्पेसिफिक टारगेट के साथ, स्पेसिफिक एलोकेशन के साथ ये अब आए हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ अगेन इन न्यूज़. ओके, सो रिसेंटली पहले तो यही है, आपको जानना होगा कि दिस वन इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एंड आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, उसमें होता है कि सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनको 100% स्कीम का देना होता है फंड. ठीक है, अगर उस स्कीम पे 100 सपोज 50 करोड़ का निकलना होगा, एक्सपेंडिचर करना होगा, तो वो पूरा का पूरा 50 करोड़ सेंटर देगी उन्हें. ओके, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंटर इटसेल्फ. बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड की, वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में बढ़ जाती है. ओके, इट डिपेंड्स कि कितना रेशियो होता है. जनरली रेशियो जो होता है वो 40:60 या 60:40 का रेशियो होता है. 60 सेंटर के लिए एंड 40 स्टेट के लिए. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जनरली ये 90:10 का रेशियो होता है. 90 फॉर सेंटर एंड 10 फॉर स्टेट. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न. एंड नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60:40 का होता है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे 60 किसी भी फंड का, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कीम में 100 रुपीज़ का एलोकेशन होना हो, तो उसमें 60 रुपीज़ कौन देगा? सेंटर देगी एंड 40 रुपीज़ स्टेट देंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. एंड दिस स्कीम नाउ जो अभी ये नेचुरल फार्मिंग स्कीम आई है अभी रिसेंटली, एक्चुअली जो फंड एलोकेशन हुआ है उसमें दोनों का रोल है. सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 1500 अराउंड, 1600 के अराउंड प्रोवाइड कर रही है एंड 897 करोड़ स्टेट दे रही है. ठीक है, एंड वाई दिस इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या है कि ये स्पेसिफिक टारगेट्स इनके थोड़े से याद कर लो, बिकॉज दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट. और अभी तो 23 के पेपर के बाद से यू नेवर नो कि यूपीएससी क्या ही पूछ दे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. तो यहाँ पे कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की बात की गई है कि 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत के. ओके, दैट मीन्स 15,000 ग्रुप्स बनाए जाएंगे डिफरेंट विलेजेस के. नेक्स्ट इज बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें 10,000 सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे फॉर नेचुरल फार्मिंग इनपुट. ओके, सो थर्ड इज मॉडल फार्म सेटअप किया जाएगा, मॉडल फार्म सेट किया जाएगा, 2,000 डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सपोर्ट फ्रॉम फार्मर मास्टर ट्रेनर्स. तो बेसिकली ये है कि पहले तो 15,000 ऑलमोस्ट, मतलब मिनिमम 15,000 का ग्रुप बनाना है. ठीक है, एंड देन 10,000 सेंटर्स बनाने हैं, बायो इनपुट रिसर्च सेंटर, जहाँ से उन फार्मर्स को बैकिंग हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस हो सके एंड प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी वो बढ़ सके. देन मॉडल फार्म्स भी बनाए जाएंगे यूजिंग फार्मर्स मास्टर ट्रेनर्स, जहाँ पे वो मास्टर ट्रेनर दिखाएंगे कि कैसे इन फार्म्स पे प्रोडक्टिविटी नेचुरल फार्मिंग से भी बढ़ सकती है और अर्निंग बढ़ सकती है. ठीक है, तो ये मॉडल फार्म्स भी बनाए जाएंगे. एंड देन मार्केट एक्सेस को और सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन के थ्रू और ब्रांडिंग के थ्रू हेल्प करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा. देन सेंटर एम कर रही है टू रीच 1 करोड़ फार्मर्स एंड इनिशिएट नेचुरल फार्मिंग इन एरिया ऑफ 7.5 लाख हेक्टेयर. ठीक है, सो दीज आर द स्पेसिफिक टारगेट्स. एक दो बार पढ़ोगे देन यू विल बी लर्निंग दिस. ओके, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए. दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द होल आर्टिकल. ठीक है, सो नेचुरल फार्मिंग आपको पता है, सो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, बट जस्ट फॉर क्विक रिव्यू, नेचुरल फार्मिंग होती है एग्रीकल्चरल रिजिलियंस के लिए, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग एंड देन मल्टीपल क्रॉपिंग. इससे कॉस्ट रिड्यूस होता है बिकॉज जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, इसका जो कंजम्पशन होता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है. इनफैक्ट नेचुरल फार्मिंग है तो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि ZBNF ऑलरेडी है एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू चेक अबाउट इट. इससे रिलेटेड वो स्कीम है. ठीक है, देन लोकल लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन की भी बात की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, एंड 2019 में ZBNF टू भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति आई थी. परंपरागत कृषि विकास योजना हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, और ये अब यही परंपरागत कृषि विकास योजना को ही हमने रीनेम किया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को. और ये जो भी टारगेट है इसे हमें 2026 तक आई थिंक आई थिंक ये 15th फाइनेंस कमीशन का जब तक टाइम है तब तक कर सकते हैं. तो अराउंड 2019 तक ये वैलिड रहेगा. ओके,
एंड प्रमोट केमिकल फ्री सस्टेनेबल फार्मिंग, सेम थिंग। बेनिफिट क्या होगा, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी और फूड में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होगी, बिकॉज वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और क्लाइमेट रिजिलियंस है, ऑफकोर्स सस्टेनेबल है। चैलेंजेस, लेबर इंटेंसिव है, लोअर इनिशियल ईल्ड, बिकॉज देखा गया है इंपेरिकल एविडेंसेस शोज कि नेचुरल फार्मिंग में थोड़ी आउटपुट कम हो सकती है इनिशियली, बट लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो इनिशियल वो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। बट इनिशियली गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट दोज फार्मर्स बाई प्रोवाइडिंग कॉस्ट, I mean subsidies on those crops and those related conventional items, and then of course giving them a market access, better branding and all these things that has been covered here. So of course government has come up with a good plan. I hope कि ये implement हो और इसके positive results आए, because implementation is the major issue, not the scheme or better policy making itself. Okay. Now third news article is related to microfinance sector, which is in under stress nowadays. Not nowadays, I think since 2-3 years. So you need to know first what is microfinance. नाम से ही समझ आ रहा है, micro, smallest, okay, smallest finance loan. So suppose I am a farmer, I don't have a lot of money and I want a credit of 50,000. आई कैन गो टू मनी लेंडर। जनरली लोग यही करते हैं, आसपास के लोगों के पास, जिसके पास पैसे हैं उसके पास वो चले जाता है कि भाई 50,000 दे दो। बट उस केस में क्या होता है, दे यूज टू चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट, 12%, 15%। ओके, सो बैंक ने इसका सोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ने या इंडिया ने इसका सोल्यूशन निकाला कि हमें छोटे छोटे लोन्स, ये जो लोग मनी लेंडर के पास जा रहे हैं उस पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उससे बेटर है कि वो हमसे ले, बैंक से लें। तो बैंक तो बड़ी बड़े अमाउंट्स देते हैं, तो इनको डेडिकेटेड स्पेसिफिकली हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। वी क्रिएटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फोकस करेंगे माइक्रो फाइनेंस पे, गिविंग अ माइक्रो फाइनेंस स्मॉल क्रेडिट्स। ओके, सो माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल और अ ग्रुप विद लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी। ओके, तो इन्हें ये छोटे छोटे अमाउंट्स के और बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करके ये दिया जाता है। ओके, आई होप ये पता भी होगा, जस्ट फॉर क्विक रिव्यू कर दिया। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं ऐसा, ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के ये जो भी हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो ये NBFCs हैं, यहाँ देखा गया है कि राइजिंग डीलिक्वेंसीज क्या होता है, व्हेन बोरोवर फेल्स टू मेक पेमेंट। उन्होंने लोन दिया है, अब वो रीपे नहीं कर रहे, तो NPAs बढ़ रहे हैं इनके। दैट हैज़ बिन सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, सो इससे थ्रेटनिंग एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस सेगमेंट। तो साइन ऑफ स्ट्रेस कैसे मिला, तो फर्स्ट है कि ये जो NPA है, अगर हम देखेंगे तो ये 2022 में और 24 में क्या था, NPA इनका था, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका NPA 22 में 2.6 था, एंड 24 जस्ट इन 2 years इनका 6.9% हो गया। दैट मीन्स 7%। सो ऑलमोस्ट 2% से 7% का बढ़ना इन जस्ट 2 years, दैट इटसेल्फ शोज अ कंसर्न कि अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। दैट मीन्स कि उन्होंने पहले के लोन्स जो दे रखे हैं दैट वाज questionable, and probably they didn't look after the collection efficiency. That has also been dropped to 94%. Earlier it was 98%. I mean, whatever the people who were taking loan, they were able to pay back, and institution was sufficient and enough to collect those funds back. But right now it reduces to 94%. Okay, and then borrower indebtedness is also there. Credit card outstanding increased to 2.71 lakh crore, which was 2.30 lakh crore just a year before. So in just 1 year almost 40 lakh crore का एक्स्ट्रा क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग। रीज़न सिंपल है कि बिना मतलब के लोगों को क्रेडिट कार्ड बांट दिया गया कि भाई लो आप लो, अरे आप कर सकते हो, फ़ोन भी आए होंगे, आपके पास भी आए होंगे, राइट, तो लोगों ने ले लिया। बट जब उसको पे बैक करने की बारी आई तो उनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है पे बैक करने की, तो इस रीज़न से इसकी भी आउटस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। सो दिस इज़ द ओवरऑल रीज़न जहाँ पे NPAs बढ़ रहे हैं, बोरोवर वापस नहीं कर पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है, और इसकी वजह से ये अंडर स्ट्रेस है अभी। ओके, ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल इशू भी है। फर्स्ट वही कि अग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस की गई हैं,
बहुत ज़्यादा ही लोन दिया गया। और ये जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है ये तो बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है कोई भी चीज़ तो वो बैकफायर करती है। एंड सेम गोज़ विथ क्रेडिट कार्ड सिस्टम एज वेल, ओके, विदाउट एडिक्वेट रीपेमेंट कैपेसिटी। सेकेंड इज़ वीक JLG मॉडल। JLG मॉडल रेफर्स टू जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जहाँ पे ये था कि कुछ लोग आ जाएंगे ग्रुप में एंड वो लोन लेंगे, तो अगर एक इंसान पे नहीं कर पाएगा तो दूसरा कर देगा। सो दे टेक गारंटी फॉर ईच अदर कि अगर इन्होंने नहीं किया तो हम कर देंगे। बट ये जो सिस्टम है आया अच्छे इंटेंशन से था, पर इसका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं था उतना, और वीक है अभी भी, तो इसकी वजह से ये अच्छा काम नहीं कर पाया। एंड देन हाई स्टाफ एट्रिशन एंड फ्रॉड, सेम चीज़, इनएफिशिएंट कलेक्शन, ओके। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस, डेट वेवर कैंपेन ऑफ कोर्स, जहाँ पे माफ़ कर दिए जाते हैं जनरल इलेक्शन के टाइम पे, या नेचुरल डिजास्टर हो गया समथिंग, इस तरीके की चीज़ों की वजह से भी NPAs बढ़ते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के। देन रेगुलेटरी एक्शन RBI ने लिया है। दे सेड कि जो भी ये NBFC MFIs हैं उनको कहा है कि आप इनएलिजिबल बोरोवर्स को हटाओ, ठीक है, और टाइटन किया है लेंडिंग नॉर्म्स फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, ओके। बट अभी भी क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसी चीज़ है जो तुरंत से ख़राब भी नहीं होती और तुरंत से ठीक भी नहीं होती, इसे टाइम लगता है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इसे भी ठीक होने में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे, ओके। सो अभी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यही हो रहा है कि कंटिन्यू टू स्ट्रेस इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज वेल, एंड कॉशियस अप्रोच लेना होगा फ्रेश सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स में, एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्टेबिलिटी भी लानी होगी, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा लोन दिए जा रहे हैं अननेसेसरी विदाउट चेकिंग देयर पेइंग कैपेसिटी, वो इंश्योर करके ली जाए कि वो दे पाए, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज ई-माप पोर्टल। नाउ ये बस आप नेम को समझो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये है क्या। ई-माप, माप मीन्स मेजरमेंट, ओके। So without before going into the news article itself, let me tell you the background information, then you will be able to understand this news in a proper manner, okay. So we have a legal metrology department, okay. Legal metrology department means it is the application of legal requirement to measurement and measuring devices. Its purpose is to ensure accuracy and security of measurement and weightments. For मतलब ये एक स्टैंडर्ड मेजर सेट कर देता है फॉर पर्टिकुलर डिवाइसेस कि यहाँ पे इसका ये मेजरमेंट होगा, यहाँ पे इसका ये मेजरमेंट होगा, ओके। एंड वी हैव दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हु डज दिस। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटर पे भी उनके अपने हैं, स्टेट के अपने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिवाइसेस हैं सेम जगह पे, बिकॉज अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग जगह पे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। जस्ट अ सेकेंड, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती, ओके। तो इसी चीज़ को सोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वी हैव लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एज वेल ऑफ 2009 विच वॉज मर्ज्ड ऑफ 2 स्कीम्स, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976 एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1985। तो इन दोनों को मर्ज करके 2009 में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बनाया गया था। इट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइसेस, ओके। सो अभी न्यूज़ में क्या है कि जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि जो मेजरिंग चीज़ें थी वो स्टेट की अलग हैं, सेंटर की अलग हैं, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ई-माप पोर्टल लाया गया है। डिजिटल इंडिया का वन ऑफ रीसेंट एग्जाम्पल, ओके, डिजिटल इंडिया, क्योंकि ये सर्विस अभी डिजिटल प्रोवाइड की जाएगी। एक पोर्टल है डेडिकेटेड जो कि ईज करेगा रेगुलेटरी बर्डन ऑन ट्रेडर्स। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल इज डिजाइन टू सेंट्रलाइज एंड इंटीग्रेट ऑपरेशन ऑफ स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एज वेल। तो वो एक जगह पे सारी चीज़ें होंगी। इट ऑपरेट इंडिविजुअल पोर्टल फॉर टास्क सच एज रजिस्टरिंग पैकेज्ड कमोडिटीज, इशूइंग लाइसेंस, वेरीफाइंग वेटिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। बेनिफिट्स इसके, क्रिएटिंग सीमलेस ऑनलाइन सिस्टम ऑफ ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, सिंप्लीफाई ऑल प्रोसीजर, ऑफकोर्स रिड्यूस पेपर वर्क, एंड देन इट कैन इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल। बिकॉज वही है कि बिजनेस को अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, ईजिली सारी चीज़ें होंगी, तो ऑफकोर्स वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा फिर इकोनॉमी में, राइट। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। For consumer, of course, weighting and measuring instruments are verified too for accuracy and boosting trust in transaction and safeguarding their rights. तो एक ट्रस्ट भी होगा कि हाँ अब सारी चीज़ें एक जगह पे हो रही हैं, तो ये चीज़ें
वन ऑफ दी फेवर में हो सकता है। तो आप इसको अगर क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्टली अगर प्रीलिम्स में पूछ दे या फिर नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी से ही पूछ दे, सो यू मस्ट बी हैविंग अवेयरनेस कि ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो आई वॉज लाइक कि मुझे भी नहीं समझ आया था, बट जब मैंने इसको पूरा न्यूज़ अच्छे से पढ़ा देन आई गॉट टू नो कि ओके दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, बस हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज COP 2019. Of course there was lot of things discussed there, but again I think इस साल का चाहे वो C29 हो COP या फिर G20 हो, दोनों ही में कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड चीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट तो नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ $1.3 ट्रिलियन की डिमांड कर रही थी क्लाइमेट फाइनेंस के फॉर्म में, वो उनको नहीं मिला, वो 300 बिलियन तक आ गया है, जो कि अभी 2015 में 100 बिलियन का उन्होंने टारगेट डिसाइड किया था डेवलप्ड नेशन ने, बट वो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी तो 300 बिलियन है, लेट्स सी कि ये कैसे जाता है। ठीक है, तो ये अलग मैटर है। व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे इज़ रिलेटेड टू कार्बन मार्केट, बिकॉज देयर वाज डिस्कशन रिलेटेड टू कार्बन मार्केट एज वेल, ऑल्दो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं कार्बन ट्रेडिंग में वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। सो आई हैव गिवन यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COP 2019 एंड कार्बन रिलेटेड थिंग कि ऐसा बहुत ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट डिस्कशंस हुए हैं। प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम हो तो शायद इस पर कुछ नया निकल के आ जाए। सो बिफोर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज़ कार्बन मार्केट एंड व्हाट इज़ कार्बन ट्रेडिंग। नाम से पता चल रहा है कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग, दैट मीन्स कार्बन इज ट्रीटेड एज कमोडिटी। ओके, जैसे कि होता है ना कि मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोन लिया, तो अब मैंने उस फ़ोन को लिया और बेच दिया, तो ये कमोडिटी की तरह हुआ ना कि मैंने लिया और बेच दिया। उसी तरीके से हम कार्बन को भी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई वी आर सेटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन, और इसको हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। अब कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि दो कंट्रीज़ हैं A और B। ठीक है, अब हमने 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर पेरिस एग्रीमेंट, उसमें हमने डिसाइड किया था NDC, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ओके, NDC। तो यहाँ पे सपोज़ कंट्रीज़ को एक टारगेट मिल गया है कि आप इससे ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं कर सकते हो। तो सपोज़ A को भी 100 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन का दे दिया कि आप इससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते, B को भी सेम चीज़ कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट A जो नेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ही 125 कार्बन एमिशन की है, उसका उससे कम में काम ही नहीं चलेगा। जबकि B है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, तो वो 75 तक ही कार्बन एमिट किया और उसके पास सरप्लस है 25 कार्बन का, क्योंकि उसकी लिमिट 100 की थी पर उसने कम ही एमिट किया है, तो उसके पास ये 25 का सरप्लस है। जबकि जो A कंट्री है इसने एक्स्ट्रा एमिट कर दिया है, तो इसको इट्स लाइक कि आपको बोला गया था कि आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे और उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अब इसको चाहिए कार्बन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि अब इस पर बर्डन आ गया है कि इसने जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है इसको ऑफसेट करे कहीं पे, तो ये इस कंट्री से इसको सरप्लस है, तो इसके पास वो सर्टिफिकेट है, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट सर्टिफिकेट कि आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन का सर्टिफिकेट है कि आपने नहीं किया, आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो ये इनको वो कार्बन सर्टिफिकेट सेल कर देंगे एंड दैट पर्सन कैन शो इन देयर बैलेंस शीट कि ठीक है हमने 25 एक्स्ट्रा कार्बन एमिट किया था, पर हमने वो चीज़ दूसरी कंट्री से ख़रीद के हमने उसको ऑफसेट भी कर दिया। सो ओवरऑल इस नेशन का भी 100 कार्बन एमिशन शो करेगा। ठीक है, एंड दिस नेशन ऑल्सो विल शो 100 कार्बन एमिशन। कैसे, बाई डूइंग अ कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, तो दो कंट्रीज़ हैं, एक ने ज़्यादा एमिट किया, दूसरे ने अपनी लिमिट से कम किया, तो जिसने कम किया वो ज़्यादा को बेच सकता है और उस चीज़ के लिए अमाउंट गेन कर सकता है। ठीक है, ओके, सो दिस वन लाइक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब इसमें क्या हुआ कि सपोज़ B को पैसे मिले, A ने एमिट किया, ठीक है, तो अब B ने उसको कैश दिया। अब वो जो कैश है जो B ने यूज़ किया वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और कार्बन अवॉइडेंस टेक्निक में और ज़्यादा कर सकता है, रिन्यूएबल में फोकस कर सकता है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि इसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, इसने ये इंसेंटिवाइज हुआ है कि जब इसने कार्बन कम एमिट किया तो ये इंसेंटिवाइज हुआ, इसको फंड्स मिले तो ये और ज़्यादा कार्बन कम करेगा।
ठीक है, और इसने एक्स्ट्रा पे किया है तो इसके अंदर टेंशन होगी कि वी हैव अ लिमिट, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज इट इज़ मेकिंग मच मोर कॉस्ट. सो वो भी ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे कम हो. ठीक है, तो ओवरऑल गोल इज़ टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बट ऑल्सो टू मेंटेन बैलेंस ऑफ कार्बन एमिशन इनटू नेचर. अब नाउ इशू इज़ दैट कि अभी इस पर कोई फाइनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म आई नहीं है. ठीक है, सो करंटली वी हैव टू सिस्टम, कंप्लायंस मार्केट एंड वॉलंटरी मार्केट. कंप्लायंस मार्केट के लिए ही ये COP29 में डिस्कशन चल रहे थे बट दे डिडंट केम टू फाइनल कंक्लूजन. सो अभी तक इस पर कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं आया है. इसमें यही है कंप्लायंस मार्केट में कि ईच कंट्री विल बी गिवन अ लिमिट कि आप इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते. इफ़ यू आर एमिटिंग मोर देन दिस यू हैव टू परचेज फ्रॉम समवेयर एल्स. ओके, so there is a strict limitation given in compliance market, but in voluntary market there is no such strict emission, though they say कि यहाँ तक का एक आइडियल है, आप इससे ज़्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो, या फिर वॉलंटरी नेशन खुद से जाके और ये कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कार्बन ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या. So carbon market are market-based instrument designed to reduce carbon greenhouse gas emission. It by creating a financial incentive for individual and organization to reduce their carbon footprint. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैप एंड ट्रेड. कैप मतलब लिमिटेशन कि वही जो मैंने बताया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो लिमिट एंड ट्रेड. एक्स्ट्रा किया तो कहीं से खरीदो, आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी को बेच दो. ओके, credit to offset their emission. I just explain you the same thing. Now this is the important data you can use for your answer writing. India is significant exporter of carbon credits. India is a exporter. Okay, mind it. We do have some surplus in terms of carbon saving, and then we used to sell it into decentralized voluntary market, and India does this through voluntary market as I explained in the second mechanism. Okay, with its credit worth USD 200 to 300 billion per year and 17% of global supply in 2022. In 2023, the World Bank ने कहा है कि annual as per the state and trends of carbon pricing 2024 report कि total USD 104 billion डॉलर का revenue reach किया है. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इसके क्या होते हैं कार्बन ट्रेडिंग के? तो फर्स्ट कि सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स गारंटी फंड्स फॉर द डेवलपमेंट. सी कार्बन क्रेडिट कौन है इस केस में? जो मैंने ये एग्जांपल दिया था, बी है इसके पास, क्योंकि इसने एमिट कम किया है तो इसके पास 25 कार्बन क्रेडिट है. ठीक है, बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि ये सेल कर सकता है. सो दिस कीवर्ड हैज़ टू बी रिमेंबर्ड कि कार्बन क्रेडिट इधर होता है और इधर कार्बन एमिटेड है. ठीक है, so carbon credit generate funds for the development. So again those nation who are having carbon credits, they are being incentivized for having more carbon credits. Okay, growth stimulates green industries and job creation, of course, because जब वो पैसे उस नेशन के पास जा रहे हैं तो वो उन्हें फिर से री इन्वेस्ट करते हैं रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ में, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में, और उससे जॉब क्रिएट हो ही रही है, तो दोनों ही फ़ायदा हो रहा है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजी. तो ये भी होता है कि जब कोई नेशन इस तरफ बढ़ रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल में इंटरेस्ट ले रही होगी, वहाँ पे FDI भी अलाउ करेगी, तो धीरे धीरे वो सेक्टर और वो नेशन FDI भी अट्रैक्ट करते हैं. बिकॉज आज की डेट में क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी, एवरी नेशन इज़ अवेयर ऑफ इट. दो बिकॉज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को रेडी नहीं है, तो एक ग्लोबल कंसेंसस में इशू आ रहे हैं, चाहे वो फंडिंग का हो, चाहे वो कोई मैकेनिज्म का हो, इम्प्लीमेंटेशन का हो, बट एवरी कंट्री इज़ अवेयर अबाउट दिस इशू. ओके, सो जब वो देखेंगे कि ये नेशन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी इस तरफ. ठीक है, देन मार्केट एक्सेस, इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, बिकॉज ये मार्केट इवन इंडियन क्रेडिट, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, इंडियन एग्रीकल्चर, जस्ट अ सेकेंड लेट मी दिस, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के पास भी ये फ़ायदा है कल्चर सिस्टम कि वो चाहें तो जो ये कार्बन क्रेडिट है अपने प्रोडक्शन मेथड को थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से चेंज करके दे कैन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इन देयर फार्म लैंड एज वेल, एंड दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू इटसेल्फ. ठीक है, तो इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टैंडिंग एज वेल एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलेगी अगर ये और अच्छे से होगा तो. ठीक है,
इंक्रीज स्क्रूटनी, अगर वही कि अगर कार्बन ट्रेडिंग एक वॉलंटरी के बजाय अगर कॉम्प्लाइंस के साथ हो तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छी होगी. जब ये अच्छी होगी तो ये अवॉइड करेगी ग्रीन वॉशिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. नाउ ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब है, आजकल देख रहे होगे ना, ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि हर कोई अपने प्रोडक्ट को कह रहा है कि अरे हमारा तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, हमारा इको फ्रेंडली है, समथिंग लाइक दैट. तो यू मस्ट हैव बीन अवेयर दिस काइंड ऑफ क्लेम. बट एक्चुअल में क्या वो होते हैं? अगर हम एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल एक ड्रेस को हम कह रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया, तो क्या उसका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है फ्रॉम वीविंग टू स्पिनिंग टू ईच एंड एवरी लेवल, क्या वो इको फ्रेंडली है? क्या उसमें किसी तरीके का पोल्यूशन जनरेट नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड. पर अगर हुआ है और वो झूठा क्लेम कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग. कि अल्टीमेटली वो रिड्यूस कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट को बिना मतलब के दिखा रहे हैं सस्टेनेबल. ठीक है, तो इसको ये एक तरीके से फ्रॉड है. ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रॉड है. एग्जाम्पल में, इंडिया कुड इम्प्लीमेंट लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बाय सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स फॉर द रिड्यूस्ड एमिशन. इंडिया कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर फाइनेंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन. सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सी, ये तो हमने बात की ग्लोबल लेवल पे, बट अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें तो ऑलरेडी इंडिया इज़ वर्किंग in a development of a framework for related to carbon trading, and we do have two system. First is PAT system and second is REC system. Okay, PAT system means perform, achieve and trade system. ठीक है, that means ये particularly energy sector से related है. पैट स्कीम फोकस ऑन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कोल, पेट्रोलियम एंड समथिंग रिलेटेड टू दो सेक्टर. और उसमें भी सेम चीज़ है कि उनमें एक लिमिट लगा दी गई है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो वहाँ पे जो वो कार्बन क्रेडिट्स है वो ये डिसाइड करते हैं एस सर्ट स्कीम से. ठीक है, तो एस सर्ट सर्टिफिकेट, तो जिसके पास एस सर्ट सर्टिफिकेट सरप्लस होगा वो सेल कर सकता है, क्योंकि जिसने मतलब कम एमिट किया है उसको ये एस सर्ट सर्टिफिकेट मिलेंगे. एंड दे कैन सेल टू दोज कंपनीज who have generated more carbon emission. Okay, so India does have PAT system where they are doing similar activities like carbon trading, and they are doing through S-Cert certification. ठीक है. Second we have REC system, renewable energy certificates. इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, then they have renewable purchase obligation. That means, या फिर इसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है नॉर्मली किसी बड़े प्रोजेक्ट में, देन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, कि दे हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड सेक्टर. आई मीन इनपुट हो गया आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, कहीं तो उसका यूज़ होगा, तो आपको इस तरफ करना होगा. ओके, एंड दीज आर, अगर वही कि अगर सपोज दो कंपनीज हैं ए एंड बी, ए ने आरपीओ जो है ये आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन इसको फुलफिल किया. इन दोनों को लिमिट थी 50 की. ए ने 75 कर दिया, बी ने 25 ही किया है. देन इन दैट केस ए के पास एक्स्ट्रा 25 का आरपीओ ऑब्लिगेशन है ना, दे कैन सेल इट टू बी एट हायर रेट. ठीक है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी की है, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे वहाँ पे, रिन्यूएबल में वो ज़्यादा नहीं कर सकते. तो वो ये सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, तो उनका भी लिमिट हो गया और इनका भी लिमिट हो गया. ओके, ट्रेडेड ऑन 2 पावर एक्सचेंज. ये जो REC है वो 2 पावर एक्सचेंज सिस्टम पे होता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे एंड पावर परचेज ऑफ इंडिया. इन 2 सिस्टम से ये ट्रेड होता है. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, G20 समिट 2024. इट हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ. एंड कुछ मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए, बट अल्टीमेटली अगैन अगर ये छोड़ दे ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. पर ठीक है, वॉट एवर इट इज़, जो भी है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन G20. So just a basic information, I know you are aware of it, just a quick recap, that G20 formed in 1999 and it have 19 countries with 2 organizations. First is European Union and second is African Union. African Union added in last G20 summit as which held in India. ठीक है, तो India had a major role in addition of African Union. So कायदे से देखा था तो G21 कहना चाहिए हमें, पर अभी भी वही ओल्ड
नॉर्म चल रहा है G20, ओके। और इसकी जो समिट है इट हेल्ड एनुअली एंड ट्रोइका बेसिस पे ये काम होता है, मतलब 3 कंट्रीज़ होती हैं। फॉर सपोज जो अभी चल रहा है इसमें इंडोनेशिया थी, यहाँ इंडिया थी, यहाँ ब्राज़ील है, ठीक है। तो इंडोनेशिया से इंडिया ने लिया, इंडिया ने ब्राज़ील को दिया, तो अभी ब्राज़ील फिर किसी और को देगी, तो दैट विल गोज़ ऑन कि 3 कंट्रीज़ का डिसाइड होता जाता है, ओके। सो फर्स्ट थिंग विच वॉज डिस्कस्ड इन G20 दैट दे वर आस्किंग कि टू टैक्स द बिलियनर, आई मीन टैक्सिंग अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं उन पे ज़्यादा टैक्स चार्ज करो और वहाँ से पैसे लेके ह्यूमैनिटी के लिए या फिर इक्वालिटी के लिए आप उन फंड्स का यूज़ करो। इस पे बात हुई है, बट अगेन इस पे कोई कंसेंसस नहीं हुआ है, तो इस पे कोई आउटकम नहीं निकला, इट जस्ट डिस्कस दैट, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा इशू भी है। आप सिर्फ रिचर सेक्शन पे अगर आप करोगे टैक्स वगैरह आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो हो सकता है कि वो उस नेशन में ट्रेड ही ना करे, फिर वो टैक्स हेवन नेशन में चले जाएं जहाँ पे टैक्स कम लगता हो। सो दैट कैन बी अ लॉट ऑफ लूप होल विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अगेन वो इक्वालिटी होगी नहीं और इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो अभी तक इस पर कोई सस्टेनेबल डिस्कशन भी नहीं हुआ है और कोई आउटकम भी नहीं निकला, सो यू कैन कट इट, ओके। सेकेंड थिंग, ग्लोबल हंगर एंड पोवर्टी अलायंस ये बना है, ठीक है, टास्क फोर्स बना है इसके लिए, और इसमें है कि मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज एंड नॉलेज फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज एंड सोशल टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस हंगर एंड पोवर्टी। या इसमें सपोर्ट हुआ है 82 कंट्रीज़ का अलॉन्ग विथ इंडिया। एंड एम क्या है इसका, ग्लोबल हंगर एंड पोवर्टी अलायंस, जो कि इसमें भी इस आर्टिकल में भी है, दैट टू हेल्प 500 मिलियन पीपल बाई 2030, मेकिंग सिग्निफिकेंट सक्सेस फॉर द G20 एजेंडा एज इट फोकस ऑन कॉन्क्रीट सोशल एक्शन, ठीक है। और इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड लास्ट सेशन में जो पॉजिटिव एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट टाइम दिया था उसमें था कि इंडिया की एक फेमस NGO है, अमृत करके कुछ एक NGO है, और वो केन्या एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिड डे मील जो स्कीम है उसको वहाँ पे अप्लाई कर रही है, ठीक है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड गिव एन एग्जाम्पल मिड डे मील for India to tackle hunger and poverty, ठीक है। तो all these things have been utilized there well by Indian Prime Minister, और ये काफ़ी हद तक इस पे काम चालू भी हो गया है, बट लेट्स सी कि कितना सक्सेस होता है, ठीक है। तो इसका एम भी 500 मिलियन पीपल है बाई 2030, सो विच इज़ क्वाइट अचीवेबल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ सस्टेनेबल गोल 18। सो टिल नाउ SDG जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव 17 गोल्स, ओके। सो एडिशनल एक और गोल इसमें ऐड हो गया है जो कि एथनिक रेशियल इक्वालिटी की बात करता है। सो क्वेश्चन हो सकता है कि इस पे ही आ जाए या इस पे ही आ जाए, तो दीज टू आर द क्वाइट न्यूअर डेवलपमेंट इन G20, और जो कि क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ SDG इज़ टोटल 18 नॉट 17, ठीक है। देन एनर्जी ट्रांजिशन एंड फोसिल फ्यूल सब्सिडीज़ पे डिस्कशन हुआ है, बट अगैन कोई कंसेंसस ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि COP 29 भी उसी के पैरेलली चल रहा था, और ना ही वहाँ हुआ ना ही G20 में हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट अगेन सेम इशू। ग्लोबल गवर्नेंस एंड सोशल एक्सक्लूजन नॉट मच मोर कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट, बस ऐसा है कि उन्होंने डिस्कस किया कि हम ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, सोशल इंक्लूजन को ज़्यादा बढ़ाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। हाँ, दिस वन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड MDB कॉपरेशन की ज़रूरत है। दैट मीन्स रिफॉर्म करना है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में टू बेटर एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड पोवर्टी। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबको और स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, और ये जो क्लाइमेट चेंज और पोवर्टी के लिए जो टैकल करने के लिए एक्स्ट्रा जो फंड्स चाहिए वो डेवलपिंग नेशन को लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिले तभी तो काम करेंगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। This diagram is just a summing up of all those topic points I just discussed. तो ये छोटे में इसको दे रखा है, ठीक है। This point is showing the power dynamics. अभी क्या है कि काफ़ी हद तक जो ब्रिक्स है उसकी जो पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, ओके। तो पहले के टाइम पे G20 का रेलेवेंस ज़्यादा था, तो G20 में US का जो प्रोपोर्शन था, पावर था, वो काफ़ी ज़्यादा था। ब्रिक्स नेशन का थोड़ा कम था, EU का भी ज़्यादा था। बट अगर आज की डेट में देखें तो US का पावर बढ़ा है ऑफकोर्स, लेकिन ब्रिक्स नेशन का पावर उससे ज़्यादा बढ़ा है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हुआ है,
ठीक है, EU का पावर घटा है और बाकी नेशंस का भी। तो इस वजह से अभी जो है ब्रिक्स काफ़ी हद तक नॉट अ रिप्लेसमेंट बट अगेन अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल ग्राउंड निकल के आ रहा है, जहाँ पे और भी अच्छे से डिस्कशंस हो रहे हैं, जबकि G20 में ऊपर ऊपर की चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले नेक्स्ट सेशन में क्या होता है G20 समिट में, क्योंकि जो इंडिया में G20 हुआ था दैट वाज क्वाइट वेरी गुड एंड आई थिंक कि नेशंस को कुछ सीखना चाहिए इंडिया से कि किसी भी इवेंट्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी आगे कैसे डेवलपमेंट होते हैं इसमें, एंड आई विल बी कीप अपडेटिंग यू if something comes up. Okay, so I hope you have learned a lot of things today, and we'll meet for the next session. Okay, bye bye, thank you, have a nice day.